पाछड़ आगे लोखंड वाला ऐसे बोले हमें सब याद है एक खावा गया तो साइन फाउंडेशन फर्क दिखाई तुमने विकास सर्विस है जीना डुबला दे रहा मुझे सारा टेबल आया है आप બધું સ્ક્રેપ થી તો બધા જૂના તમે લઈ બધા રોડી એક મોટે વાત છે ખબર તો ઉઠી રહ્યા બોર્ડ कुछ कर दिया बोर्ड ही अच्छा हां ये कोई मेहनत तो बोर्ड ने काफी है પણ આ નાનો ક્લાસ છે 8 9 સ્ટાન્ડર્ડ માટે परिसर और प्लान तो परिसर આપણે અહીંયા લેટ થઈ ગયું આજે શરૂ કર્યું હા આપણે જે ને સાજી ભાઈ જોયું આપણે 3D પ્રિન્ટ હા ડ્રોન એરો મોડ્યુલ બધું છે એને ખબર था कि दुनिया क्या है આ શબ્દો ના ખબર हां अभी तो ड्रोन कैसा होगा मालूम मच्छर तुम्हारे नीचे पे बैठ जाएगा अंदर चला जाएगा जाके बॉम्ब फोड़ेगा हां अभी तो वही माहौल चल रहा है अपने को पता नहीं हां लोगों अपना नहीं तो પછી આવા જ અસર થઈ જાય યુદ્ધ જો ને યુદ્ધમાં કે કોઈ જોયું સામ સામે માર સના આર્કિટેક્ટ ને બાળકો 4-5 વર્ષ થશે અહીંયા આવતા થઈ જશે કામ કરતા એમ થોડા મોટા રહેશે ને એમ તો બોલો ડીએનએ માં જ નહીં જ આપે છે ઇન્જેક્શન આપે છે સેવાનું સાયન્સ ના બાળકો પછી ફાઉન્ડેશન ના બાળકો સતીજી બધા યુઝ કરે છે ત્યાં પણ સતીજી જોડે છે મોર્નિંગ બ્રાન્ચમાં નહીં આવતા પણ અરે એમને મેં કહી ફિઝિક્સ વાળા સબ્જેક્ટ કથરીને કહેતા નહીં યાર સાઇન ફાઉન્ડેશનમાં કરીમભાઈ લાખાણી અને રૂહે રવા તો અમિતભાઈ મહેમાન છે અને સંજયભાઈ પણ હવે સાઇન ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી જ કહેવાય અઝીમભાઈ પંજાબી ભાઈ સીએ અમારા કામ છે અહીંયા આવો ને બોલો જી ભાઈ दर्शन रावल क्यों खैर हाँ हाँ तो वादा नहीं दो ना हाँ 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 साहेब છે એટલે વર્લ્ડ લેવલે તમારે જો સારું નેટવર્ક બનાવવું હોય અને સારા લોકોનું નેટવર્ક બનાવવું હોય તો તમારે હવે સરસવાળા સાહેબ બનવું પડે અને એમના લેખો એ જે લખે છે એ ખાસ વાંચજો ભણેલા ગણેલા લોકો તમારે ક્રાંતિ આવી જશે જીવનમાં એવું જબરજસ્ત લખે છે ગુજરાતીમાં લખે છે ટ્રાન્સલેશન
એનું મોટું એક્ઝામ્પલ સર તમે આપ્યું છે. જોરદાર તમે રફીક કોઠારી સર માટે. બેસી દે કે ના ના વાંધો નહીં, કોમનું કામ થાય છે ને, ચલો જોડે કરીએ. જોરદાર તાળીઓ કાદરભાઈ માટે હોવી જોઈએ. કાજી સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ. અમે ગર્વથી કહી શકીએ છીએ અમારા મિત્ર પણ છે એમ. અને મેગા એજ્યુ ફેસ્ટનું જે પાયોનિયર જે કહી શકાય, તમામ સ્કૂલોને ભેગી કરી અને એને એક મુહિમમાં જોડવાનું કામ એ આસિફ ખાન પઠાણ સાહેબે કરી. આપણા વચ્ચે એનઆર પઠાણ સાહેબ નથી, અલ્લાહ તાલાને જન્નત નસીબ કરે. અબ્દુલ રજાક સર જે ઇલ્મ એજ્યુકેશન, ઇલ્મ ફાઉન્ડેશન, ઇલ્મ ફાઉન્ડેશન અને સ્ટ્રીબો એકેડમી, ઇનફેક્ટ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનના જેટલા કમ્પ્યુટર સેન્ટર છે એ કમ્પ્યુટર સેન્ટર ફૂલી સપોર્ટેડ હોય તો એ રજાક અંકલ એમના સન ઉસ્માનભાઈ દ્વારા છે. લાગ્યું નહીં કે હું ક્યાંક બીજે ગયો છું. મને એમ લાગ્યું કે મારા ઘરે મારા પરિવાર વચ્ચે આવ્યો. એટલા બધા લોકોની પ્યાર, મોહબ્બત, દુઆ, સલામ મળી. માટે આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું સાયન્સ ફાઉન્ડેશન જોડે કેમ આપણે સંજયભાઈનું સ્વાગત કરીએ. સંજયભાઈ હવે બેટિંગ શરૂ કરો. જિંદગીમાં કેવો ફેરફાર લાવી શકે છે. એક વ્યક્તિ તોફાન પછી વટવામાં રિહેબિલિટેશનનું કામ કરે છે અને એ દરમિયાન એને વિચાર આવે છે, પોતે એટલા ભણેલા નથી, એટલો અભ્યાસ નથી એનો, અને એક વિચાર આવે છે બાળકોને રમતા જોઈને કે આ બાળકોનું ભવિષ્ય શું. એના મા બાપ એટલે قامت من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسها ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. पहले तो साइन फाउंडेशन पूरे फैमिली को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. जिस तरह सबसे पहले जब चालू हुआ तब मैं आया था. आज तो पता नहीं है कौन सी इनकी ब्रांच है, पर जुहापुरा विस्तार में इतना बढ़िया लोकेशन पर एक बच्चों के लिए स्कूल के क्लास, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं. और आज तो मैंने पहली बार देखा सब एसी क्लासेस है, पूरा कंप्यूटराइज है, अच्छी फैकल्टीज है. तो मैं मानता हूँ कि आज इल्म की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है समाज को, और वो काम साइन फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह करते हैं. तो मुझे तो बहुत खुशी है इसके साथ जुड़ने में. और मैं मानता हूँ कि जुहापुरा के लिए तो ये लैंडमार्क बन जाएगा कि जो बच्चे के पास दिशा नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, माँ बाप के पास पैसे नहीं, तो ऐसे गरीब बच्चे यहाँ आके अपनी कैरियर बहुत अच्छी तरह बना पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है. साहिर फाउंडेशन जैसे दूसरे फाउंडेशन की कितनी जरूरत आप करते हैं? मैं तो बोला बहुत जरूरत है भाई साहब, क्योंकि जो काम समाज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसे काम ये छोटे छोटे फाउंडेशन करते हैं. आज आप सोचिए कि यहाँ से कितनी बच्चियां क्रिकेट में गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, अच्छे अच्छे कैरियर बनाए, सीए बने बच्चे बहुत सारे. वो करीम भाई बहुत मेहनत करते हैं. तो ये मैं मानता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है. तो साइन फाउंडेशन तो हर एक इलाके में इसकी ब्रांच होनी चाहिए, और भी लोग इसमें जुड़ने चाहिए और इसमें चैरिटी करें और कुछ पैसा देके. हम धार्मिक स्थल तो बहुत बनाते हैं, पर ये धार्मिक स्थल से भी बड़ी जगह है. तो ऐसी चीजें बहुत बननी चाहिए समाज में, तभी बच्चों का विकास हो. मुस्लिम समाज में एजुकेशन के लिए बदलाव आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं मानता हूँ जिस समाज के पास एजुकेशन होगा उसी की जीत है. तो जब तक एजुकेशन नहीं है, कुछ भी आप करो, आपका कोई विकास होने वाला नहीं है. तो किसी भी लेवल पर अगर समाज एजुकेशन में इनिशिएटिव लेता है तो बहुत बड़ी बात है. मैं साइन फाउंडेशन के साथ डे वन से जुड़ा, और मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ. जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुलाना, स्किल सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ. पर बच्चे बेकार में घूमते रहे, इसको छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे. आप इस जगह पे आए हैं, अच्छी जगह है, लेकिन इसके पीछे ये गरीबों की बड़ी बस्ती है. कितना फायदा है? मुझे बहुत सारी मैं बहुत साल पहले वो फेस्ट किया था, एडू फेस्ट, तब मैं आया था. और वो तब वो रास्ते नहीं थी, जाने की जगह नहीं था. तो बहुत अच्छी सड़कें और बहुत आलीशान बिल्डिंग्स बन गए. और वो जो गरीब बस्ती है जहाँ मैं आया था, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है. और मैं मानता हूँ कि बदलाव आके ही रहेगा, और साइन फाउंडेशन उसमें लैंडमार्क बनेगा पक्का.
और ये गरीब बच्चों को उनके माँ बाप यहाँ भेजेंगे तो बहुत नेग्लिज मतलब बहुत छोटी सी फीस में एसी में बैठ के बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे। साइंस फाउंडेशन के जरिए लोग सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुंचे, एक बड़ा लेवल मिल रहा है। बहुत, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये साइन फाउंडेशन और करीम भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने जेके साथ क्लासेस चालू किए कि बच्चे आज 70-80 बच्चे सीए के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के लिए पूरा समाज अगर स्पीड मारेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम समाज की सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली आपको पता है इस तरह से जुआपुरा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ऐसे एनजीओ द्वारा चल सके ऐसे क्लास की जरूरत थी जो बच्चों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और बच्चों को जो बेस है बच्चे का एजुकेशन में वो अच्छी तरह से डेवलप करे। साइन फाउंडेशन वटवा, नारोल, दानिला में ऑलरेडी कार्यरत है, लेकिन जुआपुरा में बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए। उसके नज़र में हमने यहाँ अकीला करके जो स्कीम है TP85 की जो लास्ट स्कीम है वहाँ हमने इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी से बच्चों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें मिला है। यहाँ हम 3 सेंटर चलाने वाले, एक तो हम कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं जो स्टैंडर्ड 8 से जहाँ तक बच्चा पढ़ सकता है वहाँ तक हम उसको हम पढ़ाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स वाला एक सेंटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब बच्चों को स्किल बेस्ड अलग अलग कोर्स हम सिखाएंगे और एक साइन कंप्यूटर क्लास। तो ये 3 सेंटर हम एक साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन संजय रावल सर स्पेशल आए हुए हैं। सब ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों में जो काबिलियत है वो काबिलियत को, एक हुनर को कोई सपोर्ट करके उसको आगे ले जाने का काम करे और साइन फाउंडेशन इंशाल्लाह आप सबके सपोर्ट से ये काम करेंगे। अच्छा, कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन? अभी तक जो डेटा हमारे पास आया तो 70 to 80 बच्चे का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारी कैपेसिटी तो 300, 400, 500 बच्चे तक है और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम और उसको आगे ले जाएंगे। हमारा पर्पज है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ ना दे, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई, बहुत सारे लीडर यहाँ आए हुए, सब जुड़े हुए। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। फीस का क्राइटेरिया कैसा रखा है? हाँ, जो बच्चे गरीब है, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए तो हम फी लेते नहीं, उसकी 0 फी है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उसको नॉमिनल फी में हम पढ़ाते हैं। पर्पज ये है कि अगर बिल्कुल फ्री करेंगे तो उसको इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता उसके पास हम कोई फी लेते नहीं। अच्छा, फैकल्टी कैसे? हाँ, फैकल्टी हमारे हाईली क्वालिफाइड आती है। कोई भी फैकल्टी वो जो फील्ड में पढ़ाती है बच्चे के, उसकी टॉप की डिग्री उसके पास होती है। MCOM है, BEd है, MSc BEd है, या जो भी, यानी जो फील्ड का जो बच्चा है उसको जो फील्ड का जो पढ़ाना है उसकी जो टॉप की डिग्री है वही फैकल्टी यहाँ आती है और उसके पास हम उसको प्रोफेशनली पे करते हैं। कितने ब्रांचेस खुल चुके हैं? अभी तक दानिला है, वटवा है, नारोल है और ये हमारा चौथा वेंचर है और अगर आप लोग का सपोर्ट है तो और हम आगे काम करेंगे साथ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद मेमन है, साइन फाउंडेशन से मैं हूँ और आज हमने यहाँ पे माइको अकीला हाइट्स पे हम लोगों ने एक नए क्लासेस की शुरुआत की है साइन फाउंडेशन की जानिब से और उस क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 8 से मास्टर तक की पढ़ाई होगी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग होगी, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग होगी और कंप्यूटर के दूसरे एडवांस 20 से ज़्यादा कोर्सेज की भी तालीम उसमें होगी। वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने इंतज़ाम किया है और एक सबसे बढ़िया जन सेवा केंद्र हमने शुरू किया है जहाँ किसी भी तरह के चार्ज के बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ बन सक पाएगा। स्कॉलरशिप है, एडमिशन है और बाकी सारी चीज़ें जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसका काम भी वहाँ पे हो पाएगा। हमने काफ़ी जगह से जगह तलाश किया। हमारा स्पेशल टारगेट था फतेहवाड़ी एरिया के लोग और फतेहवाड़ी में हमें जगह की इंतज़ाम नहीं हुआ। पूरा रमज़ान महीना हम लोग घूमे लेकिन नहीं इंतज़ाम हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये माइको वाले कादर भाई को पता चला कि आप जगह ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने ये जगह हमें मुहैया कराई है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में हमने इस क्लास को रेडी किया है और यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होगी और कंप्यूटर क्लास सभी वर्ग के लोगों के लिए, ना सिर्फ ज़रूरतमंद, सभी लोग वहाँ पे आके कंप्यूटर क्लास, रोबोटिक्स, ड्रोन और एरो मॉड्यूल वगैरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। सवाल तो आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन पिछले 6-7 साल से जब भी हमने सुना कि फतेहवाड़ी एरिया के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है तो हमने यहाँ काफ़ी ट्राई की। कभी हम फंड से रुके, कभी हम जगह से रुके और कभी ऐसा हुआ कि कभी हम वहाँ सक्सेस जाएंगे भी या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमने लास्ट हमारे जो प्रोग्राम थे
उसमें हमने कहा था कि हमारा 25वां जो एकेडमिक ईयर्स है वो हम इंशाल्लाह जुहापुरा में मनाएंगे और अल्लाह ने ये चीज़ हमारी पूरी कर दी। इसी साल हम लोग दानी लिमड़ा में भी प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि हमारे किसी भी मुस्लिम एरिया में नहीं है, सीए फाइनल तक की पढ़ाई, सीएस, एसीसीए, सीए में वगैरह की भी पढ़ाई इंशाल्लाह हम लोग खोडियार नगर एरिया में जो माइको हाइट्स है, माइको बिजनेस सेंटर है, उसमें हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। क्रेज किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है? अभी कॉमर्स में अच्छा वो रहता है और हम लोग यहाँ पे कॉमर्स और साइंस दोनों की पढ़ाई कराने वाले हैं और हमारी फीस बिल्कुल न के बराबर है और उसमें भी यतीम, सिंगल पेरेंट्स, ऐसे सारे बच्चे होंगे, उससे किसी तरह की कोई फी नहीं ली जाएगी।